Hello students, I am your science teacher Smita Zambre and today we are going to start our 14th lesson water. In this lesson we are going to learn the various points on water topic. Now let's move towards which point we will learn in this lesson. First we are going to learn that where do we get water from. Next point, water cycle. Third point, loss of water by plants. Next, how are clouds formed. Next one, back to the oceans. Next, what if it rains heavily. What happens if it does not rain for a long period. Next point, how can we conserve water, and the last point is the rainwater harvesting. So students, now let's move towards the first point of this lesson, where do we get water from? हमें पानी कहाँ से मिलता है? So the answer may be different. Some of you say that we get water from river, spring, pond, well or hand pumps, taps. You all are correct. But have you ever think about that? Where does the water come from to fill this? इन सब में भरने के लिए पानी आता कहाँ से है? Students, as we already know that the 1/3 of our earth is covered with water and most of the water is found in the seas and the oceans. But students, we know that the water of the oceans and sea is in the saline form. Saline means that water is not fit for drinking or any other domestic purpose, or agricultural or industrial needs cannot be completed by this water. So the water in the oceans and seas come to use or useless. मतलब फिर इतना बड़ा जो अमाउंट पानी का सीज में या फिर ओशियंस में है, वो पानी फिर वेस्ट ही है क्या हमारे लिए, या फिर वो कुछ काम में आता है, वही देखना है. So students, now let's move towards the second point of this lesson, water cycle. Now second point of this lesson is water cycle. Students, you know about the water cycle. In this water cycle, the water in the or on the surface of earth evaporates continuously due to the heat of the sun. मतलब क्या होता है, जो सरफेस पे पानी होता है ना, तो वो पानी की कंटिन्यूअसली हीट होती है. इवेपोरेशन मीन्स व्हेन द लिक्विड फॉर्म इज हीटेड. हम किसी भी लिक्विड चीज को जब हीट करते हैं एंड दैट कन्वर्ट्स इट इनटू द वाटर वेपर्स, दैट इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन. तो पानी का जो कुछ सरफेस के ऊपर का पानी होता है, उसका इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली चालू रहता है. देन व्हाट हैपन विद दिस इवेपोरेटेड वाटर और द वाटर वेपर्स? As water vapor is lighter than air, it goes up in the atmosphere and form clouds. वो ऊपर जाते हैं क्योंकि वो एयर से जो है वो लाइट वेटर होते हैं, वहां पे जाके उसके क्लाउड्स तैयार होते हैं. क्लाउड्स तैयार होने के बाद ऑब्वियसली दे आर मूविंग, और फिर उसको हवा लगने के बाद एंड व्हेन दे कंडेंस्ड, मतलब अभी वहां पे क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, एंड दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. फिर वहां पे वाटर वेपर मतलब गैसियस स्टेट का कन्वर्शन वहां पे किस में हो रहा है, लिक्विड में. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में कूलिंग होती है और इवेपोरेशन में हीटिंग होती है. सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन and the rainfall goes in a continuous chain, and that chain is called as the water cycle in the nature. मतलब सीज में का और ओशंस में का पानी हमें इस तरह से जो है वो काम में आता है. Now let's learn about the loss of water by plants. अभी देखो, हमने देखा था कि चैप्टर 7 में है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर डालते हैं. If have you ever think that जो पानी होता है ना, एक अगर आप सोचते हो तो जो व्हीट के प्लांट्स होते हैं है ना, जिससे हमें 1 किलो गेहूं मिलता है, दैट प्लांट नियरली है ना, सिर्फ ऐसा एक प्लांट जिससे हमें 1 किलो गेहूं मिलता होगा, वो प्लांट जो है वो लगभग 500 लीटर पानी जो है वो ट्रांसपिरेटेड करता है.
500 लीटर यानी कि नियर अबाउट 25 लार्ज साइज बकेट्स. सो आपको इमेजिन करना होगा कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू कितना पानी इवेपोरेटेड होता होगा. दैट्स व्हाई वी से दैट we have to plant the more trees. So plant release the water vapors into the air through the process of transpiration. और इससे जो है वो क्या होता है, हमें जो है वो वाटर साइकिल में हेल्प होती है. Now moving towards the next point, back to the oceans. अभी देखो क्या होता है, जो कुछ पानी ऊपर जा रहा है जिससे क्लाउड्स तैयार हो रहे हैं, है ना, और फिर क्लाउड्स के बाद ड्रॉपलेट्स तैयार होके वो रेनफॉल के वे में जो है वो बाहर आ रहे हैं, और वो सारा का सारा पानी जो है वो क्या होता है, जमीन के ऊपर होता है. वी नो दैट वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन. पानी जो है वो जमीन के ऊपर आ रहा है, तो वो सिर्फ पानी के रूप में ही आता है क्या? नो, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो एंड many other forms, and that goes back to the oceans. So the circulation of water between the oceans and the land is a continuous process. This maintains the supply of water on land. मतलब ऐसा नहीं है कि ओशन में का पानी इवेपोरेशन होके कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते चला जा रहा है ना. देखो बहुत बार ऐसा होता है कि रोड पर का पानी, है ना, या फिर हमारे घर के रूफ पे का पानी अचानक से गायब हो जाता है. तो ये जो जितना सारा सरफेस, अर्थ के सरफेस ऊपर का पानी है, वो जो है फिर ओशियन से जाके बैक टू द ओशियंस हो जाता है. और बहुत सारा पानी जो है वो हमारे ग्राउंड वाटर में भी जो है वो क्या होता है, स्टोर्ड होता है, जिससे हम हैंड पंप्स, है ना, या फिर वेल्स का इस्तेमाल करके उसे निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली. जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है? So students, as we know that in India most of the rainfall occurs in the monsoon season, है ना, हमारे यहाँ जो है वो बारिश के महीने में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है. एंड अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, if heavy rainfall leads, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश अगर हो गई है, so there are chances of the floods. तो वहाँ पे बाढ़ आने की जो है वो चांसेस होते हैं. तो what are the disadvantages of floods? फ्लड्स की वजह से एनिमल्स जो है, एनिमल लिविंग इन वाटर गेट्स कैरिड आउट अवे बाय द वाटर, है ना. फ्लड की वजह से वो सारे के सारे ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं. अगर बहुत ज़्यादा हेवी रेन है, सो इट कॉज ग्रेट डैमेज टू द एनिमल्स, also the human property, crops, and it disturbs the whole human life, है ना. बहुत ज़्यादा बारिश भी is not good for us. Now let's learn about what happens if it does not rain for a long period. As we already know that मानसून सीजन में जो है वो बारिश होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है. And that condition is called as the what? Drought. As we know that soil continuously loses the water by the evaporation. If it does not rain for a long time, this may lead to the drought. In this condition, it is difficult to get food and fodder, and so many difficult situations are occurring during the drought. मतलब जैसे फ्लड के डिसएडवांटेजेस है, वैसे ड्रॉट्स के भी जो है वो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है. सो द एक्सेस ऑफ वाटर एंड देयर इज नो रेनफॉल, है ना, दैट मीन्स दीज टू कंडीशंस आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स और फॉर आवर नेचर. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो सारे पॉइंट्स देखे उससे हमें ये तो समझ में आता है कि द वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बींग्स, है ना. हमारे लिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे अर्थ के ऊपर पीने लायक पानी जो पोर्टेबल वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम है. सो व्हाट वी हैव टू डू और हाउ कैन वी कंजर्व द वाटर? सो वी जस्ट हैव टू थिंक दैट हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड हमारे अर्थ के ऊपर का पानी जो है वो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में अवेलेबल है. सो हमें सिर्फ इतना ही करना है. वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. वी शुड केयरफुली, है, हमें क्या करना है, केयरफुली यूज करना है किस चीज़ का, वाटर का. एंड वी टेक केयर दैट वी डू नॉट वेस्ट द वाटर. इतना भी अगर हम करते हैं कि पानी का अगर हम केयरफुली इस्तेमाल करते हैं और पानी को अगर वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सो वी कैन कंजर्व द वाटर इन अ वेल मैनर. Now moving towards the last point of this lesson, rainwater harvesting. Now what is mean by rainwater harvesting? So rainwater harvesting means collecting rainwater in this way that wherever it catches
Okay, wherever it falls, we have to catch that water. That means it is the one way of increasing the availability of water by collecting and storing the rain water for a time. है ना, इससे क्या होता है, हमारा वाटर का जो है वो स्टोरिंग वो भी बढ़ जाता है और हम क्या कर सकते हैं, पानी की बचत भी कर सकते हैं और उसे कलेक्ट भी कर सकते हैं. Okay students, so in this way we finished this lesson. Okay, read the lesson carefully and watch the video carefully. Okay students, thank you. Hello students, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you.